નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હિન્દીમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 નન્ના મુન્ના રાઈ હું કવિતાનું પુનરાવર્તન જોઈશું. સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોઈશું. તો અહીંયા છે કવિતા કા અર્થ. અહીંયા કવિતાનો અર્થ આપેલો છે, તો એને આપણે જોઈ લઈએ. इस गीत के लेखक शकील बरदायनी है. इस गीत में एक बाल सैनिक भारत देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है. આ ગીતમાં આ કાવ્યના લેખક કોણ છે? શકીલ બરદાયુ. અને આ ગીતમાં એક બાળ સૈનિક ભારત દેશને આગળ વધારવા માટે ભાવના વ્યક્ત કરે છે. मैं एक छोटा सा राही हूँ और मैं देशभक्ति के रास्ते पर चल रहा हूँ. छोटा होने के बावजूद भी मैं इस देश का एक सिपाही हूँ. आप सभी लोग मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाइए. તો અહીંયા શું કહે છે? એક નાનું બાળક છે જે મુસાફિર હું એવું કહે છે, અને એ દેશભક્તિના રસ્તા પર ચાલવા માંગે છે. એ નાનો હોવા છતાં પણ એ દેશમાં એક સિપાહી હું એવી રીતે એ ચાલવા માંગે છે. અને કહે છે કે આપ સભી મેરે સાથ જય હિન્દ કા નારા લગાઈએ, અને તમે બધા મારી સાથે જય હિન્દનો નારા લગાવો. मैं देशभक्ति के इस रास्ते पर डर कर नहीं चलूँगा. અને કહે છે કે મેં देशभक्तिना આ રસ્તા પર डरीने नहीं ચાલું. चाहे मुझे इसके लिए कितने ही कष्ट सहने पड़े. એના લીધે મને કેટલાક પણ દુઃખ પડે પણ હું सहन કરી લઈશ. मैं मेरे लक्ष्य को पाने के पहले कहीं पर सकूँगा नहीं और હંમેશા આગે बढ़ता रहूँगा. એટલે એ બાળક કહે છે કે મેં મારું લક્ષ્ય જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત નહીં કરું ત્યાં સુધી કોઈ પણ જગ્યાએ રૂકીશ નહીં અને આગળ વધતો રહીશ. मैं धूप में भी कड़ी मेहनत करूँगा और अपना पसीना बहाऊँगा. અને હું ધૂપમાં પણ તડકામાં અને ધૂપમાં પણ હું મારો પસીનો બહાઈશ અને આગળ વધીશ. मेरा पसीना जहाँ बहेगा वहाँ खेत लहराएंगे. અને મારો પરસેવો જ્યાં પડશે ત્યાં ખેતર લીલા થશે. मैं धरती पर पापियों को जन्म नहीं लेने दूंगा और हमेशा आगे ही बढ़ता रहूँगा. અને કહે છે કે હું પૃથ્વી પર પાપીઓને જન્મ નહીં લેવા દઉં અને હંમેશા આગળ વધતો જ રહીશ. मैं बड़ा होकर इस देश का सहारा और इस दुनिया का बहुत प्यारा बनूंगा. અને હું મોટો થઈશ અને દેશનો સહારો બનીશ અને દુનિયાને બહુ પ્રેમ કરીશ. मैं अपना तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूँगा और हमेशा आगे ही बढ़ता रहूँगा. અને કહે છે કે હું મારા તિરંગાને હંમેશા ઊંચો રાખીશ અને હંમેશા એને આગળ વધારતો રહીશ. मेरा देश भारत शांति प्रिय देश है. અને મારો દેશ છે એ શાંતિ પ્રિય દેશ છે. और मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा. અને મારો દેશ છે એ શાંતિ પ્રિય છે અને હું બધાને પ્રેમથી વ્યવહાર કરવાનું શીખવાડીશ. मैं दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने दूंगा और इंसानियत को आगे बढ़ाता हुआ हमेशा आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा. અને दुनिया पर क्यारे पण बम पड़वा नहीं दऊँ અને इंसानियत आगे बढ़ाता रहूँगा. એટલે કે માનવતાને હું આગળ વધારતો રહીશ અને હું હંમેશા આગળ વધતો રહીશ. હવે આગળ જોઈશું આપણે પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું. તો નંબર 1, નન્ના મુન્ના રાહી દેશ ખાલી જગ્યા હું. તો શું આવશે એના જવાબમાં? नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ. પછી પ્રશ્ન નંબર 2, मंजिल से खाली से पहले न लूँगा कहीं दम. तो એનો જવાબ શું આવશે? મંજિલ સે પહેલે ન લૂંગા કહી દમ.
नंबर 3, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा खाली जग्या। तो શું આવશે? આગે ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। પછી પ્રશ્ન નંબર 4, રાહી કેસા હે? શું પૂછે છે કે મુસાફિર કેવો છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે: એ બૂઢા, બી જવાન, સી નન્ના મુન્ના અને ડી સમજદાર। તો શું જવાબ આવશે અહીંયા? नन्ना मुन्ना। राही कैसा है? राही नन्ना मुन्ना है। प्रश्न नंबर 5, नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो અહીંયા ઓપ્શન છે જય હિન્દ, જય જવાન, જય જય અને અમર રહો। તો શું બોલવાનું કહે છે? जय हिंद। तो नन्ना राही अपने संग जय हिंद बोलने के लिए कहता है। नंबर 6, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? શું પૂછે છે કે નાનો રાહી છે મુસાફિર એક રસ્તા પર કેવી રીતે ચાલશે? तो नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर और सीना तान कर चलेगा। प्रश्न नंबर 7, नन्ना राही कहाँ दम लेगा? શું પૂછે છે? નન્ના રાહી નાનો મુસાફિર છે ક્યાં દમ લેશે, એટલે કે ક્યાં સુધી જશે? तो શું જવાબ છે? नन्ना राही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दम लेगा। એટલે કે એનું પોતાનું લક્ષ્ય જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી એ દમ લે નહીં, અડગ રહેશે। नंबर 8, धूप में खाली जगह में बहाऊँगा जहाँ। तो धूप में पसीना में बहाऊँगा એટલે કે તડકામાં હું પસીનો બહાવીશ। नंबर 9, नन्ना राही जहाँ पसीना बहाएगा वहाँ हरे भरे बाग बगीचे लहराएंगे। तो શું છે? ખરું છે કે ખોટું છે? તો આ વિધાન કયું છે? નન્ના મુન્ના રાહી પસીના બહાવાનું કહે છે? તો હા, તો વિધાન કયું આવશે? ખરું। પછી પ્રશ્ન નંબર 10, धूप में पसीना कौन बहाएगा? તો શું પૂછે છે કે તડકામાં પસીનો કોણ બહાવશે? તો અહીંયા ઓપ્શન છે કિસાન, બી નન્ના રાહી, સી મજદૂર, ડી સિપાही। તો અહીંયા શું આવશે? નન્ના રાહી। પ્રશ્ન નંબર 11, धरती पर कौन जन्म नहीं लेंगे? શું પૂછે છે કે ધરતી પર કોણ જન્મ નહીં લેશે? તો ઓપ્શન છે જવાન, પાપી, પક્ષી, ડી ડરપોક। તો શું ઓપ્શન જવાબ આવશે? પાપી। તો શું આવશે? ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેंगे। હવે પ્રશ્ન નંબર 12, नन्ना राही धूप में क्या करेगा? तो એનો જવાબ શું આવશે? नन्ना राही धूप में पसीना बहाएगा। प्रश्न नंबर 13, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो તડકામાં પસીનો બહાવાથી શું થશે? તો એનો જવાબ શું આવશે? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। तो શું કહે છે જવાબમાં? કે તડકામાં પસીનો બહાવાથી ખેતર લીલાછમ થઈ જશે। प्रश्न नंबर 14, नन्ना राही क्यों चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले? એટલે કે નાનો રાહી છે મુસાફિર એ કેમ નથી ચાહતો કે ધરતી પર પાપી જન્મ ले? तो એનો જવાબ શું છે? नन्ना राही देश में शांति बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि कोई बुरा काम न हो और वह चाहता है कि धरती पर पापी न जन्म ले। तो નાનો રાહી છે એ શું વિચારે છે? કે દેશમાં શાંતિ બનાવી રાખવા માટે કોઈ પાપી જન્મ નહીં લે અને કોઈ ખરાબ કામ પણ નહીં થાય એટલા માટે પાપી જન્મ નહીં લે। प्रश्न नंबर 15, बड़ा हो के खाली जगह सहारा बनूंगा। तो અહીંયા ઓપ્શન છે એ ઘર, ગામ, દેશ કે દુનિયા। તો શું પૂછે છે કે બડા હો એટલે કે મોટો થઈને ખાલી જગ્યાનો સહારો બનીશ। તો શું આવશે જવાબમાં? तो सी बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा। प्रश्न नंबर 16, नन्ना राही दुनिया की आँखों का
नूर बनेगा। तो आ विधान साचुं छे के खोटुं छे? नानो राही दुनियानी आँखोना नूर बनशे? तो नहीं। तो शुं आवशे? खोटुं। प्रश्न नंबर 17, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? शुं पूछे छे? नानो राही छे मुसाफिर ए कोनो सहारो बनशे? तो जवाब में शुं आवशे? नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। प्रश्न नंबर 18, कौन लोगों की आंखों का तारा बनना चाहता है? शुं पूछे छे? कि कया लोकोनी आँखोनो तारो बनवा मांगे छे? तो जवाब में शुं आवशे? नन्हा मुन्ना राही लोगों की आंखों का तारा बनना चाहता है। प्रश्न नंबर 19, राही हमेशा किसे ऊंचा रखना चाहता है? अहींया शुं प्रश्न पूछे छे? कि मुसाफिर हमेशा कोने ऊंचું રાખવા માંગે છે? तो जवाब में शुं आवशे? राही हमेशा तिरंगा ऊंचा रखना चाहता है। पछी 20, नन्हा राही दुनिया की आँखों का तारा कैसे बनेगा? एटले के नानो मुसाफिर छे ए दुनियानी आँखोनो तारो केवी रीते बनशे? तो अहींया जवाब में शुं छे? नन्हा राही दुनिया की आँखों का तारा देश का सहारा बनकर बनेगा। एटले के दुनियानी आँखोनो तारो बनीने सहारो बनशे। प्रश्न नंबर 21, शांति खाली जग्या है मेरा यह वतन। तो शुं आवशे? अहींया ऑप्शन छे घर, नगरी, देश, दुनिया। तो अहींया जवाब में शुं आवशे? बी, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। पछी प्रश्न नंबर 22, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का खाली जग्या। तो शुं जवाब आवशे? सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। प्रश्न नंबर 23, किसान दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। तो अहींया आ विधान साचुं छे के खोटुं छे? तो कोण बम नहीं पड़वा दे? तो कोण कहे छे? तो नन्हा राही कहे छे। तो अहींया कोण छे? किसान। तो शुं आवशे? खोटुं आवशे। पछी प्रश्न नंबर 24, नन्हे राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? शुं पूछे छे? कि नाना राहीए नाना मुसाफिरे शांतिनी नगरी कोने कही छे? तो जवाब में शुं आवशे? नन्हे राही ने शांति की नगरी अपने देश भारत को कहा है। शांतिनी नगरी कोने कीधुं छे? भारत देश ने। प्रश्न नंबर 25, राही सभी को क्या सिखाएगा? एनो शुं छे? राही शुं पूछे छे? कि राही बधाने शुं शीखवाड़शे? तो अहींया जवाब में शुं आवशे? राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा। तो शुं शीखवाड़े छे? कि प्रेमथी व्यवहार करवानुं। हवे प्रश्न नंबर 26, नन्हा राही देश में क्या नहीं गिरने देगा। तो ये प्रश्न शुं पूछे छे? कि नानो राही छे जे देश में शुं पड़वा नहीं दे। तो एनो जवाब शुं आवशे? नन्हा राही देश में बम नहीं गिरने देगा। तो नानो राही शुं पड़वा नहीं दे? देश में बम नहीं पड़वा दे। प्रश्न नंबर 27, देश का सिपाही कौन है? अहींया प्रश्न नंबर 27 में शुं पूछे छे? कि देशनो सिपाही कोण छे? तो जवाब में शुं आवशे? नन्हा बालक देश का सिपाही है। एटले के नानुं बाळक देशनो सिपाही छे। हवे प्रश्न नंबर 28, नन्हे मुन्ने राही का नारा है खाली जग्या। हवे नन्हा मुन्ना राहीनो नारो शुं छे? ए कयो नारो बोलाववानुं कहे छे? तो अहींया ऑप्शन आपेला छे, आगे बढ़ो, बी सत्य की विजय हो, सी जय हिंद अने डी जय हो। तो नन्हा मुन्ना राहीनुं सूत्र शुं छे? नारो शुं छे? तो ऑप्शन सी जय हिंद। नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद। आगळ छे प्रश्न नंबर 29, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? नमूना रूप जवाब। तो अहींया एक सैनिक लड़ता लड़ता घायल थई जाए
તો એ શું વિચારશે? તો એના અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે જવાબ આપેલો છે, મેં ઘાયલ ન હોતા તો અંત ઝૂંઝતા રહેતા, એટલે કે છેલ્લે સુધી હું લડતો રહેતો. અને બીજું શું છે? મેરે સાથી સૈનિક ભાવુક ન હો તો અચ્છા હે, એટલે કે જ્યારે હું ઘાયલ થયો ત્યારે મારા સાથી સૈનિકો છે એ ભાવુક ન થાય, મારા પાછળ દુઃખી ન થાય. प्रश्न नंबर 30, कोई ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. તો આ તમારે જાતે કરવાનું છે. તમે કોઈ પણ દેશ સેવા માટે કોઈ કાર્ય કર્યું હોય તો આમાં લખવાનું છે, એટલે કે કઈ દેશ સેવામાં કંઈ કરેલું છે કે કરવાનો વિચાર છે તે તમારી જાતે લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 31, અગર તુમ સિપાही હોતે તો ક્યાં કરતે. અહીંયા શું પૂછે છે કે તમે સિપાही હોતા તો શું કરતા. તો આ જવાબમાં તમારે જાતે લખવાનો છે, તમારી પોતે વિચાર કરીને કે હું સિપાही હોતો તો શું કરતો. પછી આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 32, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ. તો આપણે આપણા રાષ્ટ્રધ્વજને તિરંગો કેમ કહીએ છીએ અને એના રંગનો અર્થ બતાવવાનું કીધું છે. તો શું આવશે? हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा. આપણા રાષ્ટ્રધ્વજમાં કેટલા રંગ છે? 3, કેસરી, સફેદ અને લીલો. इसीलिए हम इसे तिरंगा कहते. એટલા માટે આપણે 3 રંગ છે એટલા માટે આપણે એને તિરંગો કહીએ છીએ. केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, અને કેસરી રંગ વીરતા અને બલિદાનનું પ્રતીક છે. અને સફેદ રંગ શેનું છે? સફેદ શાંતિ કા પ્રતીક છે. સફેદ રંગ શાંતિનું પ્રતીક છે. અને નંબર 3, हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है. અને લીલો રંગ છે એને શેનું પ્રતીક છે? સમૃદ્ધિ અને હરિયાળીનું પ્રતીક છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 33, नन्हा मुन्ना राई हूँ कविता के आधार पर देश का या सिपाही के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए. तो અહીંયા नन्हा मुन्ना राई विषय लखवानुं छे, देश विषय. हमारे देश का नाम भारत है, हम सबको भारतीय प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए. हमें भारत की सेवा करने के लिए कष्ट उठाने पड़ते तो कष्ट भी उठाने चाहिए. तिरंगा हमारे देश की आन है, उसे हमें हमेशा ऊंचा रखना चाहिए. भारत एक शांति प्रिय देश है. હવે બીજું છે सिपाही विषय. तो सिपाही निडरता और साहसी होता है. देश के लिए शहीद होने में वह कभी झिझकता नहीं. देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है. वह हमेशा हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे यही प्रयत्न करता रहता है. वह देश में सुख शांति बनाए रखने को ही अपना कर्तव्य समझता है. હવે પ્રશ્ન નંબર 34, માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ. જે હિન્દીમાં આપેલું છે એને આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે. તો પહેલું શું છે? મેં દેશ કા સિપાही हूँ. તો શું થશે? હું દેશનો સૈનિક છું. બીજું છે ધરતી પર હરે ભરે ખેત લહેરાએંગે. તો શું ગુજરાતી થશે? ધરતી પર લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે. નંબર 3, બડા હોકર મેં દેશ કા સહારા બનુંગા. તો શું થશે? મોટો થઈને હું દેશનો આધાર બનીશ. નંબર 5, मेरा देश शांति की नगरी है. मारो देश शांतिनी नगरी છે. नंबर 5, सबको प्यार का चलन में सिखाऊंगा. બધાને હું પ્રેમનો વ્યવહાર શીખવીશ. नंबर 6, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे. બાળકો રસ્તા પર ડર્યા વગર ચાલી શકશે. नंबर 7, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे. પૃથ્વી ઉપર પાપી જન્મ નહીં લેશે નહીં. नंबर 8, मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा. तो શું આવશે ગુજરાતી? હું દુનિયાની આંખોનો તારો બનીશ. नंबर 9, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा. દુનિયામાં ક્યાં પણ બોમ્બ પડશે નહીં. અને નંબર 10માં શું છે? हमारे देश का नाम भारत है,
અમારા દેશનું નામ ભારત છે। प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित भावार्थ के संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। अहींया जे पंक्ति आपेली छे काव्यमांथी शोधीने लखवानी छे। तो शुं छे पेलुं, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा। पछी छे रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम। हमारा देश शांति प्रिय है। तो अहींया शुं छे काव्य पंक्ति में शांति की नगरी है मेरा यहाँ वतन। पछी नन्हा राही सबका प्याला बनेगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। चौथुं छे मैं कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। तो कविता में शुं आपेलुं हशे, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, रास्ते पे चलूँगा न डर के। हवे प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। बिना पेलू छे जीना, तो शुं आवशे विरोधार्थी शब्द मरना। बीजू धरती तो आकाश। प्यार तो नफरत। चौथुं आगे अने पीछे। पांचमું ऊंचा तो नीचा। छठुं दया तो दाया तो बाया। सातमुं बड़ा और छोटा आवशे। अने आठमुं शांति तो अशांति। प्रश्न नंबर 37 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू छे आँखों का तारा, तो शुं आवशे बहुत प्यारा। अने वाक्य केवी रीते बनशे, बेटी अपने माँ बाप की आँखों का तारा होती है। बीजू छे मर मर कर जीना, तो शुं आवशे बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। अने वाक्य केवी रीते आवशे, मर मर कर जीकर भी माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। नंबर 3 दम लेना, तो एनुं शुं आवशे आराम करना। अने वाक्य केवी रीते बनशे, लक्ष्य प्राप्त किए बिना दम नहीं लेना चाहिए। नंबर 4 पसीना बहाना, तो शुं आवशे कड़ी मेहनत करना। अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाना पड़ता है। 38 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 सिपाही सैनिक। बीजू राही, तो शुं आवशे मुसाफिर। तीजू मंजिल तो लक्ष्य। चौथुं धरती अने पृथ्वी। पांचमुं आवशे रास्ता तो पंथ। छठुं आवशे दुनिया तो जगत। प्रश्न नंबर 39 उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अहीं 1 में लड़के खेल, तो शुं आवशे खेल रहे हैं। पछी खाली जग्या क्रिकेट खेलता है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीजू आप कहाँ जा रहे हो। पछी चौथुं खाली जग्या किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। प्रश्न नंबर 5 हम खाली जग्या, तो शुं आवशे हम पढ़ते हैं। 40 लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं। अहींया लखवानुं छे कि देशनी सेवा केवी रीते करे छे। तो पेलुं शुं छे किसान, तो किसान केवी रीते देशनी सेवा करे छे। तो किसान कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है, जिससे हमें सबको खाना मिलता है। काफ़ी अनाज निर्यात भी किया जाता है। बीजू शुं छे शिक्षक। शिक्षक विषे शुं आवशे, शुं सेवा करे छे। तो शिक्षक आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करके उन्हें अच्छा नागरिक बनाकर देश की सेवा करते हैं। तो आगळ शुं छे नंबर 3 खिलाड़ी। तो खिलाड़ी केवी रीते सेवा करशे। खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा से अपने देश का नाम रोशन करते हैं। पछी छे नंबर 4 कथाकार। तो कथाकार केवी रीते सेवा करे। कलाकार अपनी कला से हमारे देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं। वह उनकी कला को देश विदेश में प्रसिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं। नंबर 5 आप। तो आ तमारी जाते लखवानुं छे। तमे केवी रीते करो छो, सेवा करो छो। तो आ तमारे जाते लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अहींया पंक्ति आपेली छे एने पूर्ण करवानी छे। तो पहेलुं शुं छे
रास्ते पे खाली जगह आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो यहाँ रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। પછી બીજી પંક્તિ શું છે? બડા હો કે ખાલી જગ્યા बढ़ाऊँगा कदम। तो आने પણ પૂર્ણ કરવાનું છે। તો શું આવશે? बड़ा हो के देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा, रहूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। હવે પ્રશ્ન નંબર 42, સિપાઈ के बारे में अपने विचार लिखिए। હવે સિપાઈ વિશે તમારા વિચાર લખવાના છે, એટલે તમારે જાતે લખવાનું છે। અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે, सिपाही हमारे सहायक के रूप में कार्य करता है, उस पर लोगों के जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। वह अपनी जान को खतरे में डालकर देश और समाज की सेवा में तत्पर रहता है। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों को निभाते समय कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। वह अपनी ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता है। वह आम नागरिकों का मित्र है। तो सिपाही सैनिक विषे आ वाक्यों लखवाना छे। हवे आगळ जोईशुं प्रश्न नंबर 43, मेरे देश के बारे में निबंध लिखिए। तो अहींया मारा देश विषे निबंध लखवानो छे। तो अहींया आपेलुं छे, जोईए ते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी संस्कृति, युवा शक्ति और नारी शक्ति को पूरा विश्व सलाम करता है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। भारत प्रगतिशील देश में से एक है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कौशल की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और उसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। देश का नाम भारत राजा भरत के नाम से पड़ा है। अंग्रेज़ों ने उसका नाम इंडिया रखा है। उसको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत को वीरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर भगत सिंह, महाराणा प्रताप जैसे बहुत से वीर हुए हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन, એટલે કે ભારતને 15 ऑगस्ट 1947ના દિવસે स्वतंत्रता मिली और उसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। અને संविधान 26 जनवरी 1950ના દિવસે लागू થયું। भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र बना होता है। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत संस्कृति का खजाना है। यहाँ अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाज है। यहाँ पर सभी त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 65% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। એટલે કે 65% વધારે जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी रही है। भारत ने आज़ादी के बाद से बहुत प्रगति की है। यदि यहाँ के लोगों को सही मार्गदर्शन और अवसर दिया जाए तो भारत विश्व को महाशक्ति बना सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણું ચેપ્ટર નંબર 3નું પુનરાવર્તન પર જોઈ લીધું અને આ ચેપ્ટર નંબર 3 પર બધાએ બધા પ્રશ્નો પાકા કરવાના રહેશે। તો નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ।